Okay, fine. So let's start the session on the note that yes, your prelims examination has been postponed now. Okay, so with this, two, three things I would like to clear here first. Uh, those who have been doing good, things are in their hand. You can 10-15 days give to some main subject if required. If you left your optional in between, you can cover the same. Okay, when I say main subject, it doesn't mean totally mains oriented. It means 10-15 days, 3-4 hours at max, because you are somehow logging, I guess, somewhere 8 to 10 hours, those were regular. Okay, so 3-4 hours can be afforded this time. Okay, uh, those who have switched to the PSCs, I will say, somehow now I will say your exams has been streamlined, your PSCs and all, UPSC and all. So even that can be kept in mind. That thing can be kept in mind. Third, what I'll suggest, it's high time those who were not regular and still not in session somehow tries to watch videos and then dares to message me. It was a daring act only, na. So I'll say perfectly fine from my side. This is the last breather that you received from the UPSC. Now, please don't blame your luck. So if someone asks me 3 months enough for UPSC, certainly it is. Okay, for prelims, I will say. You haven't done the answer writing, it's fine. If you are appearing for the next year, you are planning right now for the next year, even then you cannot help, because with me no one is like the first attempter, apart from barring one or two, I will say. No one is the first attempter. Almost all of you are the veterans of this field. Okay, so what wrong, what right you have done in the past, it doesn't matter. Fair enough. In such context, to those who are not regular, it's high time now. 10-15 days you can, I will say, cover the things if possible. 20 days are more than enough. But those who are not, those who don't want, it's fine. We have already, I will say, almost covered 60-70% of our course. Last 30%, my role is very limited. So I guess yesterday or today itself, Ayushi was asking whether we are on the auto mode. You are not commenting something. So no, auto mode will not be, I will say, activated right now. Next 20-25 days will be further from my side only. Okay, that breather wala period. Okay, so auto mode certainly will shift. Else by April I would have put you on the auto mode. Okay, and auto mode means nothing. It's like my interventions are less. Weekly sessions I will be meeting you guys, no doubt over it. Okay, then I'm just clearing it off. Those who were good with the course throughout the session, those who were good throughout the session, it's better to pick either one paper, not more than that, or your optional paper. Don't go for essay wala thing. Reason for the same, you guys are in the GS mode. If you write essay right now, you will end up writing anything else. Okay, so GS2 can be picked up or GS1 can be picked up if someone is going for the option. Those who have the backlogs or was not able to catch up with the pace of the batch, you just got a breather. So be in that phase only. But yes, just to, I will say, so that you do not saturate, you do not feel burnt up. Okay, make sure do optional revision 2-3 hours a day, because totally prelims oriented 25 days is a huge task. You do not know, but it is a huge task. Rest 2-3 days you can have holy fun as well, I will say. If you want to go back and all at your places, go. I always say that it's completely fine to me. No need to be worried.
Okay. Like 2 days before yesterday, I will say I was having talk with some Anup Garg. So he's IAS of the Kerala cadre. Okay. Probationary posting is on. Okay. Fair enough. So he was like, sir, घर नहीं जाना हो पा रहा है. It's like I'm unable to go back at my place. I mean, during the festivals and all. So it's this is the time where in the preparation you can enjoy these festivals and all. Else you are just, I will say, working for the government only. Fair enough. Next, let's talk about something agenda wise. I'm planning now certain changes in our strategy. Okay. So anything related to a postponement of the date, I think all clear. If you got any doubt, address it. Else I'm going to your, I will say, updates. No? Yes, Kriti. सर जैसे प्रीलिम्स तो पोस्टपोन कर दिया पर मेंस आई गेस नहीं होगा ना पोस्टपोन. Most likely it will be. Okay. Most likely it will be. Whole process is disturbed. Yeah, UPSC ka whole process is disturbed. It's not like that. It's like 20 days result will be there at least. Then everything is postponed. So I'm expecting it should be. But even if it is not, then we cannot do much. It is same for everyone. It will be a tough walk for the newcomers, certainly. But we will manage somehow at that time. That's why I'm telling you, it's better to take one paper in your hand right now. Anything else? Done. So I will start with Vandana itself. Okay, since you have to leave first. People are cute though. They do not even dare to update the sheets. They will directly call me up. What to do now? After certain moments, I will say you can do nothing. It's better leave the preparation now. Whoever wants to take it personally, you can take it. You deserve the same. Hmm. Vandana, I will say something like you are trying to speed up, but you are not getting your questions correct. Okay, it means you need one more revision. It means the breather that you got of the 25 days, it's better to utilize solving some other sectionals as well and revising the same. You are not revising the sectional that I can see. Reason why I'm assuming the same? Wait. Reason why I'm assuming the same? If you are revising the sectionals, strategic revision has been given to you, your time would have taken more revision time. But you are trying to speed up the things without following the process. I never said that you do not have to follow the process. I always say speed up. I never say jump the process. This is what I can conclude. In this case, you have to go for one more revision. तो जैसे अभी मैं ज्योग्राफी कर रही थी तो अभी उसका सेक्शनल दूं फिर जो उसके बाद फिर रिवीजन जो भी मुझे लगता है कि जहाँ कमी है जैसे क्योंकि जो इन्वायरमेंट का मैंने भी टेस्ट दिया था मुझे इस बार तो मैंने जो जो पहले दिया था ना उसमें तो मैंने ऑलमोस्ट उसका एनालिसिस कर लिया थोड़े से क्वेश्चंस रह गए तो उसमें तो मुझे फिर भी लगा कि मैंने पढ़ा हुआ था जो मेरी रिवीजन से मतलब गलत लेकिन आज जो मैंने टेस्ट दिया भी उसका एनालिसिस तो करना है बट उसमें ये था कि काफी चीजें नई थी मतलब
नए नाम, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने नहीं पढ़ा है अभी, या फिर कुछ चीजें मेरी इन्वायरमेंट में रह भी गई ना जो मैंने भी पढ़नी थी। मतलब कुछ चैप्टर्स के बाद मैंने टेस्ट दे दिया था ना, जैसे 12-15 चैप्टर्स के। So that you have to do means somehow you have to study it again. Okay. I cannot say that you avoid the test. नहीं नहीं ठीक है। Reason, now I want you to go for the next sectionals. Your solution is there only, nowhere else. और अच्छा, जैसे अभी बाकी, जैसे अभी आपने कहा ना रिवीजन, अब सेक्शनल्स की, अब जैसे ऐसे भी रिवीजन कर लूं, जैसे भी पॉलिटी का कभी उठा जो टेस्ट दे लिया है, तो उसमें से कि उसको उठा लिया कि अभी एकदम से पूरा ना हो तो। Not right now. That I had planned for April. Now it will be for April 15. You haven't covered your syllabus yet. 2 revisions. You want to revise the sectionals. नहीं, अभी तो मैं अभी सिलेबस वापस रिवाइज करूं, ये बोला क्या आपने स्टार्टिंग में? सिलेबस हो गया आपका कंप्लीट 2 बार, नहीं नहीं, तो वही मैं मैं बोल रहा हूँ। सेक्शनल, सॉरी। सिलेबस पहले 2 बार कंप्लीट होगा, ठीक उसके है, बाद आप सेक्शनल रिवीजन करेंगे। मतलब हमें सेकंड रिवीजन के वापस साथ चले एक जाएं। बार कंप्लीट तो करने दे यार, या तू पहले सारे डाउट्स रख ले, मैं लिख लेता हूँ, अच्छा या मैं मुझे बोलने दे। इट्स लाइक कि पहले सेकंड रिवीजन के साथ व्हाट आई हैड प्लान कि आप लोगों के सेक्शनल बेयर मिनिमम खत्म हो जाए। ठीक ठीक है, मतलब सेकंड रीडिंग नॉट रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन आई विल से। है। ठीक है, सो यू शुड कंप्लीट योर सेक्शनल्स। जब इसके बाद जो रीडिंग शुरू होगी उसमें सेक्शनल रिवीजन कर सकते हो आप। वहां पे मैं आपको आपके लेवल के हिसाब से बोल रहा हूँ एडिशन और सेक्शनल अटेम्प्ट करने के लिए। गॉट इट? वन मोर थिंग, हो गया ना? और कुछ पूछना है? नहीं, अभी तो बस वही सेक्शन ठीक है, पहले सिलेबस फाइन। कंप्लीट कर बिफोर यू लीव जस्ट लेट मी टेल वन मोर थिंग फॉर द ग्रुप, देन फिर इंडिविजुअल जैसे जैसे होता जाएगा यू कैन लीव। ठीक है, हाँ, तो व्हाट आई हैड टू टेल all of you, it might be a case that you should just message me, sir, when I was giving the FELT full length test, I felt that I am unable to recall anything, and it's like blank for me. I haven't even read. Okay, so this problem is with everyone. Just concur with the nodding so that she can relate कि नहीं मैं अकेले नहीं हूँ. Fair enough. So this is it. Okay, why this thing happens? Try to understand. Right now you were in the sectional mode. आप लोगों ने कभी टेस्ट सीरीज को उसको पर्सपेक्टिव से देखा ही नहीं कि इंस्टीट्यूट क्या बेच रहा है और आप क्या खरीद रहे हो। डिफरेंट मोटिव। आप खरीदते हो ये सोच कर कि इट विल मीन बेसिकली यू परचेज दिस टेस्ट सीरीज, बेसिकली दिस टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू गाइस टू क्लियर द प्रीलिम्स। ओके, what institutes thinks, I will make a tough test series and I will ensure that these guys purchase my other course modules as well. Boosters, okay, last minute revisions, special classes, 300 hours, these things I will say. So there is a I will say mentality gap in such situations. First, when you were attempting the sectionals, it's like you read polity, you do sectionals, so it's like a same continuity, mind is active for the same. But when you switch the subjects, it's like 10 questions of polity means FLT, 10 questions of polity, then 16 questions of history. Suddenly you're like, mind is not acclimatized to which subject you should focus upon. Okay, so what it tells, I do not know anything. In these things it happens, but at the same time the questions that you attempt and that you got correct, Ayushi, if I'm correct, you guys will be able to relate it that correct questions were the questions when you trusted your vague memory or say subconscious mind. It somehow got correct. Were you able to observe this? This is what you have to look upon. Fair enough. So when we attempt first 2 FLTs, it was my purpose why I said that you have to attempt one or two FLTs. That much only I told you, na, I guess.
How many FLTs I told you guys? Two. Two. Yeah, 1 or 2. That's what I guess. Okay, just to let you acclimatize to the situation of emergency. Once what happens, your revision time reduces, say third revision. So in the interval where you revise 3 subjects, now you will be revising 5 subjects. So 5 subjects is like 60-70% of prelims. And then your FLT marks seems improve. Similar thing happened with your sectionals as well. Those who are in the improvement side, strategic revision and all. Reason for the same, when you realize this is the format of asking the questions, your marks started improving. Correct? Got it? So right now for 2 tests, this was my only purpose, so that you feel that you are not well prepared. Now, since you are scared enough, it's high time I can sell you my another course. Understand the institute's mind now. You go for the end of any test series. Generally, people score good. Why? Paper becomes easy. And you think, no, I have improved a lot. In reality, paper has become easy. Now you will find, no, this test series is good. And so I was able to utilize in the similar manner. This is the institute's mindset. Got it? Clear? Fair enough. So you have to just continue it. It will not repeat. Mark my words, when you will be giving your second FLT, your score will be improved. Now, I hope you guys are listing out the two options topic, or no? I told you guys, na? In the last session itself, where you are confused between 2 options. No. Then you wrote it right now. Second direction. Only, acha na, shit. This I have to tell today only, na? I just got carried away with the agenda. Thank you. Vandana, you haven't left, else you had to watch the recording. I missed 2 important agenda just because of this 26th June. Okay, so first, now, if you are confused between 2 options, note down the topics, whether they belong to FPAR, Parliament, rebellions, whatever it is. Note down it with you, okay, and leave it. I'll tell you what to do with these topics. These are the topics where if you give enough, I will say even 10% of your attention, these will be concretized. And your silly mistakes, your correct numbers will increase. So suppose if Ayushi says to me, sir, today is 16th of June. I am well prepared. What should I do? However, she will not say. I know her. Okay, but what to do? Then I will tell her, do one thing. Remember those high yielding topics that you are confused, and if you got them, even if you read once, do it. Fair enough. Now, this was my second agenda. What I was about to tell, that leave 4 options from now onwards. Means if you are confused between all the 4 options, unable to solve the question, leave that question. But I would have said that had it not been the dates out of the 26th June. So I will refrain it for the time being. I will say it in the next session. I'm just giving you a reason when to stop adding new information in your bucket. Whenever you know nothing of the 4 questions, certainly you add new information, you scribble, you underline, you add in your notes. This is what you do. Perfectly fine. But I say from April onwards, no new information, means April mid onwards, no new information should be read. Okay, had it not been 26, so I would have said from the April itself. So right now,
I haven't said you to stop it. I will say it in future maybe. Fair enough? Good. Chalo. Next, 1, 2. Now I'm perfectly fine. I'm done. Vandana, you can leave if you want. और मुझे Okay. ये भी एक चीज पूछनी हम्म थी, जैसे अभी ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट खत्म करके मैं जैसे रिवीजन करूंगी तो मैं ऐसे पूरा 100 वाले क्वेश्चंस की बजाय 50-50 वाला से प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मतलब टेस्ट 50 क्वेश्चंस वाले जो टेस्ट आते हैं. You are not at that liberty. Reason for the same, it's not like that any addition is in your rates. Let me be frank with you if you want a reality check. These days will help you to come on the pace. It's not like that they have expedited your pace. So don't try some innovative ideas. एक सेकंड, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई, तो फिर मुझे अभी मैं पूछ लूं एक बार. सिर्फ सेक्शनल एड ऑन करने हैं, ठीक है. 50-50 मोड में मैं मना इसलिए कर रहा हूँ, वो टाइम ज्यादा खपती करते हैं, क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं. ठीक है, ओके. प्योर हिंदी में समझा देता हूँ. जब तुम्हें दिखेगा 50 का एक, 50 के दो, 100 का एक ही हुआ है वो, लेकिन दो, दिल को शांति मिली, आज तो बहुत कर लिया मैंने. ठीक है, 2 ब्रेक भी आ गए, जो 1 घंटे में काम हो सकता था वो 1.5 घंटे में होगा. टाइम तो बर्बाद कर लिया ना तूने. तो ये एक्सपेडाइट नहीं करना, और स्लो कर रहा है तुझे ये. और तेरे को ये टाइम पीरियड एक्सपेडाइट करने के लिए नहीं मिला है, तेरे को मिला ताकि तू ट्रैक पे आ जाए. तो फिर क्लियर? सजेस्ट भी कर दो कौन से दे दूं, मतलब और कौन से इंस्टीट्यूट के दे दूं या फिर विजन के दे दूं, या क्योंकि ऐसे विजन के कंफ्यूजिंग. विजन के टफर साइड पे है, मैं पहले ही बता रहा हूँ. इस साल थोड़ा अजीब से पेपर वो बना रहे हैं, तो मैं यू कैन सुन. गो फॉर इट. ओके. पेपर का अजीब मतलब वही है कि यार ऑप्शन ऑप्शन पे हरकत कर रहे हैं, कुछ नया कहीं से भी उठा के डाल रहे हैं. तो मेरा पर्पस लेकिन रिवीजन का होता है, तो वो भी सर्व करेगा. 100 में से 30 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा वो उल्टे सीधे कर देंगे, 70 तो कन्वेंशनल रहेंगे टॉपिक से. ठीक है, मैं कर लूंगी, पहले ही खत्म कर. मैं जाऊं? हाँ, यू कैन लीव. थैंक यू. ओके, फाइन. अब मैंने एक चीज देखी है, जिस हिसाब से आप लोगों ने अपडेट कर रखा है उसी हिसाब से बिठाऊंगा बढ़िया तरीके से. लास्ट में दिव्यांशी जाएगी सीम. साई करण का अपडेट मेरे पास पहला है, इतना बता सकता हूँ. बाकियों ने तेरे से पहले अपडेट किया हुआ है, शायद ऐसा हो सकता है. इसका डॉक्यूमेंट्स का ये रहता है, व्हेन यू यूज डॉक्यूमेंट्स, द लास्ट एडिटेड डॉक्यूमेंट will be at the recent size. Okay, so now instead of first come first serve basis, I have realized that I will free according to the accountability. Okay, Sai Kiran, Yes, sir. what issue you are facing presently? Sir, actually regarding sectional, sir. I mean, like when I do the first section, mainly the first sectional. So when I do, I find majority of the questions clueless. At least one option from one question. So they are like, because of that one option, I'm getting the question wrong. It is fine, just do the value addition as required, because these Okay. things are there in the UPSC prelims itself. Yeah, in reality you knew only 20-25 questions. Those who cleared, they knew only 30 questions around. Got it? Okay. Yes, sir. Okay, so see, your CSET is going good, I will say. What about the RC? RC, I mean, like I'm going on and off, sir, because of the state and all. From I mean, I've even mentioned in the Your message network is not that good. as well. Like I'll update every day, but I'll start mentioning it. Is this fine right now, sir? Yes, it's fine. Hello. Yes, Okay. it's fine now. So like No, when you start speaking, it's like fluctuating a lot. okay, RC is going on and off. So I've already mentioned in the message. Okay, just a second, please. Is this fine now?
I hope so. It will continue to be fine. Actually, exactly at this time, I mean, like from 7 to 10, the network will be busy at this area. Couple So time, huh? I don't know. So, like RC on and off chal raha hai. I mean, like I've already mentioned in the message, right? Like I'll start mentioning about that also, but then state ka shuru hota. So I'll start mentioning that as well from tomorrow's message. I forgot to It's mention fine. today's It's message. I fine. will just The way you are going, it's fine from my side. Okay. I just say ki I cannot expect much from you, because whenever I say something good about you in the next session, you certainly ensure that you perform below your potential. So no good words from my side, even if you deserve the same. okay. Yes, sir. Fair enough. So I will just Yes, say sir. touch wood. Hope you will continue it. That's all I can say. Fair enough. Thank you, sir. Okay. Sir, and one more thing, I'll need a Hmm. little bit more time for economy as well. I mean, like because of the state one, I did not do that. Yeah. So This breather is for you guys only. Means you given by the UPSC. yes, sir. And I do understand it. Yes, sir. I mean, like even I felt the same just looking at. But sir, I mean like will we get less time for mains? So I mean like Most will there be likely any not. problem with mains? Most likely not. Okay. Okay. Fair Sir, enough. and one more thing, in the last Yeah. mentorship session, you asked to remind me something about like you wanted to add something extra for me. But I will say now I won't. okay. I will just I don't want you to burn up. I would have Okay. thought it to add for everyone something or else. But all my Okay. analysis has been made zeroed by the UPSC, I will say. Okay. Okay. Else I would have certainly added. But right now, no. The Okay, problem sir. is that if you guys end up being burnt up now within the May, I will lose. I Okay. will say do little light with you guys for next 10-15 days, and then we will do loading. Okay. Done, sir. Okay. Fair enough. Ankit Chitralekha, as you are not there, I do not know. Ankit, you said that your JPSC exam, it got leaked. It was on 17. Again missing. Chitralekha, no updates, nothing. I do not know how to help you out. Fair enough. Brijesh, Yes, sir. मार्क्स नहीं लिख रहा है तू ज्यादा, मतलब मार्क्स ज्यादा उठ नहीं रहे, करेक्ट? मार्क्स फुल लेंथ टेस्ट के लिखे सर, सेक्शनल में वो लिख देता हूँ क्या राइट है क्या रॉन्ग। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही चल रहा है, ज्यादा उठ नहीं रहे, करेक्ट? यस सर। सर अभी वो साइंस एंड टेक ज्यादा पढ़ रहा था तो सेक्शनल ज्यादा दिए भी नहीं। नहीं तो जितने दिए मैं उसमें बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रहा है वो, जो तेरा करेक्ट यस और सर। इनकरेक्ट का रेशो है। यस सर। ठीक है, चल तो ठीक रहा यार। ठीक है, अभी कुछ एडिशन भी नहीं करूंगा। ठीक है, यस बस सर। मैं ये बोलूंगा जस्ट कंटिन्यू विद इट। सब ओके ओके सर। रिपोर्ट है, कुछ पूछना है तो बता। सर मैं तो जैसे आप वो बोले थे वो 50 क्वेश्चन वाला, मैंने तो फोरम के लिए इसमें तो है ही 50 क्वेश्चंस, तो अब वो मैं तो 100 एसएफजी वाले वाला, लेके आऊँ। वो एसएफजी वाला कर रहा है ना तू, यस सर। तो कंटिन्यू रख तू उसको। ओके सर। तू डेली भी तो कर रहा है ऑलमोस्ट, यस सर। तो फिर वही फर्क है, उसको पढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, चलने दे तू। ओके सर। डन। और कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है, लाची। यस सर। लास्ट वीक स्लो हुआ, उससे पहले भी स्लो चला है, रीजन? तो सर वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब चल रही थी अभी। ऐसा क्या हो गया मेंटली डिस्टर्ब? यू शुड हैव शेड्यूल्ड द कॉल। सर बताती हूँ। ठीक है, नॉट अप टू द मार्क। ठीक है, और इसमें मुझे बस ये बोलूंगा कि करेक्ट इनकरेक्ट मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहे। ज्योग्राफी में समझ में आ रहे, ठीक है। साइंस एंड टेक में बिल्कुल से डाउन हो गई।
तो साइंस एंड टेक में मेरे को पहले से इशू था, तो इट्स लाइक कि अभी विपिन सर के सेशंस मैंने अटेंड करे हैं एंड जो पीडीएफ भी शेयर करी थी ना, तो उससे थोड़ी हेल्प हुई है मुझे। तो इट्स लाइक कि अब मैंने वापस से थोड़ा वर्कआउट चालू कर दिया है, वापस से साइंस एंड टेक का रिवीजन स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, तो वर्क्स। अभी मैंने सोचा कि पहले थोड़ा और रिवीजन कर लूं, एटलीस्ट 60% हो जाए, उसके बाद फिर मैं साइंस एंड टेक के सेशनल स्टार्ट कर दूंगी वापस से। ठीक है, डन। अभी ये ब्रीथर मिल गया इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट मैं ये बोलूंगा मेरे पास तेरे अपडेट्स भी रेगुलर नहीं आ रहे। मैंने बोला था सर जबकि आपने कुछ शायद। अल्टरनेट डेट्स का बोला था ना, तो इट्स लाइक कि लास्ट मैंने 17 को अपडेट किया था एंड आज का मैं अभी रात तक अपडेट करने वाली थी, तो इसलिए। वेरी गुड। और कल का तेरा ऑफ था। नहीं सर, मैंने हाफ डे लिया था, बस लाइक डे टाइमिंग हाँ था, नाइट में मैंने किया है, सी सेट के क्वेश्चन सॉल्व हाँ, किए तो थे। मेरे पास कुछ अपडेट नहीं है, तो मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, फेयर ठीक है इनफ। सर। चलो ठीक है, कंटिन्यू। साइंस एंड टेक का स्पीड अप करो। मतलब आई एम हैप्पी कि लास्ट के तुमने 10-15 दिन जो खींचे हैं, ऑल ऑफ यू, ऑलमोस्ट इट्स फाइन फ्रॉम माय साइड, आई विल से, है ना। चलो देन यू कैन लीव देन। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। नहीं सर, फिर वो कॉल शेड्यूल कर लेंगे अपन एक दिन, तो मैं ठीक है, उसमें सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। ठीक है, डन। थैंक यू सर। ओके, गिरजा। यस सर। लैगिंग बिहाइंड रीजन। नहीं सर, मेरा इकोनॉमी तो मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, मतलब सेक्शनल भी ठीक ठाक दे रहे हैं। मेरे को इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आरसी कहाँ जा रहा है, सर क्या वो हो रहा है। डेली अपडेट्स में आरसी मतलब अभी ज्यादा नहीं कर रहा हूँ सर। डेली अपडेट्स में मैं दिया था आई थिंक 3-4 बार, मतलब अभी तक 15 डेज के अंदर 4 दिन आई थिंक मैं आरसी किया हूँ। उसके बाद मेरा हम्म। क्वांट और रीजनिंग साइड थोड़ा ज्यादा हो रहा हाँ, है। तो वही तो मैंने इसमें बोला था मेंशन करने के लिए एक बार को। गॉट इट। Yes, sir. समरी पे मेंशन कर दिया कर, मेरे को बस वही नहीं समझ आया तो मैंने स्पेसिफिक पॉइंट पूछ लिया। वो जो आप मुझे मैसेज में मेंशन करते हो, मैं फिर उसमें से फ्लो चेक करता हूँ, मैं आप लोगों की समरी से आपकी परफॉर्मेंस चेक करता हूँ पुराने वाले से थोड़ा सा कंपेयर करके। ठीक है, जो आप मेरे को डेली अपडेट्स देते हो, इट इज मोर अबाउट कि मैं एनालाइज करके बता सकूँ स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्या है, कैसे है। ठीक है, तो जा तो ठीक रहा है, कहीं स्कोर अबव एवरेज जा रहा है, कहीं एकदम से लुढ़क रहा है, उसका रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर एफएलटी में मतलब मैं जो प्रॉब्लम आपको बताया था सर, वही प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक आई वाज श्योर अबाउट मतलब 18 to 20 क्वेश्चन में पूरा श्योर था, वो तो फटक से हो गया। उसके बाद जो किया, ये जो कंफ्यूज वाला, वो बहुत कम था इन नंबर्स। उसके बाद मेरा सब कुछ नेगेटिव साइड में ही चला गया है, तो पता नहीं। अभी वैल्यू एडिशन की तरह ले उसको, अभी सिर्फ वैल्यू एडिशन की तरह ले, दैट्स ऑल आई विल सजेस्ट। ठीक है, ठीक है। करता हूँ कुछ उसका जुगाड़ एक दो चीजों का। मोस्ट लाइकली इन द अप्रैल फर्स्ट वीक। ठीक है, मैं अभी सोच रहा था होली के बाद, बट अब अप्रैल फर्स्ट वीक आई विल इंश्योर कि एक सेशन for you guys. One mentee of mine is Arju is there, she will take. Okay, she is quite good with the prelims mindset and all. Okay, so she will let you know. Before that I just want you to ensure कि एक रीडिंग और सेक्शनल्स आँख के आगे से निकल चुके हो। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट। सर डन से। मेरा ये प्रॉब्लम भी हो रहा है, मतलब पहले क्या किया, ये जो एफएलटी में पूरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया। अब माइंडसेट है इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये नहीं है वो नहीं है, उस चक्कर में आता हुआ 2-3 आंसर मैं गलत कर दिया हूँ। मतलब कंफ्यूज होके, ऐसा नहीं मतलब ये होगा, मतलब कंफ्यूज तो होके। ये तो मैंने बोला था, ओवर यूसेज ऑफ ब्रेन किल्स, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू गाइस ना, ओवर यूसेज ऑफ ब्रेन किल्स। पीएचडी नहीं करनी है, एग्जाम इज ऑफ जर्नलिस्ट नेचर ओनली। So why you guys are into the PhD side? I do not get it. ठीक है सर, अभी मतलब
सर ऐसा कर सकता हूँ क्या, लाइक अभी मतलब पहला क्वेश्चन पढ़ा, यदि आ रहा है तो उसको टिक करके चले जाओ, मतलब ऐसा करूँ, या पूरा क्वेश्चन मतलब पढ़ के ही मतलब टिक करना ठीक रहेगा? भाई क्वेश्चन पढ़ा, उसको टिक मार, जो भी है। डॉट प्रेफरेंस वाला तो बता दिया मैंने लास्ट सेशन में तुम लोगों को। क्या सो रहा था? कैसे इस्तेमाल करेगा अगर डॉट प्रेफरेंस, अगर तू पहली बार में ही टिक नहीं कर रहा तो कैसे इस्तेमाल करेगा? बता मुझे जरा, मैं आधा घंटा चीखा हूं कम से कम उस टॉपिक पे। क्या समझाया मैंने? क्या पूछ बताया था मैंने डॉट प्रेफरेंस के टाइम पे? मेरे को पहले मतलब जो आता है वो पहले टिक करने के लिए बोले थे। और जिसकी साइड इंक्लिनेशन उसके आगे डॉट लगाने को बोला उतने। हाँ सर। तो अगर 40 क्वेश्चन एक साथ पढ़ेगा तो कहाँ करेगा ये काम? हमारे अपनी कब्र खुद खोदनी होती है अगर हम पीएचडी करने लगते हैं। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली। मैं सर आगे से ध्यान रखूंगा सर। हम्म। पहला अटेम्प्ट था तो थोड़ा घबरा गया, आगे से ध्यान रखूंगा सर। कोई बात नहीं। गुस्सा उस बात पे आ रहा है कि जब मना किया था वो चीज कर रहा है। मार्क्स पास तो हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है। ठीक है सौरभ, सिंस यू आर नॉट हियर, आई नो दैट एट द योर प्लेस यू विल बी वाचिंग द रिकॉर्डिंग इटसेल्फ। सो यार, द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर पुटिंग इट उसके हिसाब से ठीक है, बट अमाउंट ऑफ टाइम इज बीइंग रिड्यूस्ड। I do not know the reasons, but I'm unable to get it. Again, I will say just one line, the line I generally use: performing below your potential. Sometimes it happens that situations do not help you, rather than they kind of ensure that you do not reach to your stage. But ultimately, you have chosen this path. You cannot always blame the situations. Sometimes you have to fight back. That's all you have. Okay. And I haven't received any update post 10th, I will say. That is also there. Gopal, okay, you are in library. Doing good, I will say. Doing good, just keep up the pace. Uh, what I cannot get is only the anything about the RC. Okay, from your updates. Rest everything is, I think, going good. Okay, just be in the form. If you got any questions, just let me know. Else, it is fine from my side. No questions? Okay, RC is lacking. Fair enough. Just work on it. If any questions, just type it out. Else I'll move. Aman, the way you are updating me, to be very honest, I cannot get anything. So I can comment nothing. I've already shared one or twice that what kind of updates you need to do. I can't help. Kavya, Yes, sir. when is your group A? 9th June.
Going good. What about the CSAT? Doing yesterday and today didn't. Are you updating me regularly? I do not even remember. Yes, 2 days. Yesterday and today I didn't. And Sunday also I just took the FLT. That's what I will say. But listen the videos of number system. So I didn't practice, but just listen. But the fear is there for CSAT. I will say just focus on the CSAT. You can slow down your GS part. This breather you should utilize in the CSAT side, specifically in the quant side. At Yes, sir. least give 2 hours to 2.5 hours daily basis. That is your personalized recommendation from my side. Yes, sir. Got it? Any questions to be asked? Answer regarding GS, should I go for mains or state PSC? I thought after 26 I can focus on that, but now State PSC. okay. Yes, sir. State PSC and CSAT should be your focus area. Don't go for the mains. Okay, just revise the PubEd. Revise means Okay. 1.5 hours. You do not need more than that. I know it. Okay, sir. Fair enough? Yes, sir. Thank you. Chalo then. You can leave as well. Ayushi, यस सर questions बोल लो यार पहले तुम अपने. सब मैं ये पूछ रही थी ना कि कभी कभी ऐसा लगता है प्रेम पटेल भी पढ़नी है, एटलस भी पढ़ना है, सीसैट भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, डीएस भी पढ़ना है, तो वो रोज ऐसे मैनेज नहीं होता है। और कभी कभी ऐसे दूसरे तीसरे दिन भी मैनेज नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसे लैग होता जा रहा है ये मैंने बताया था आई गेस लास्ट सेशन में आप लोगों को थोड़ा सा. एक मिनट. कि 70% भी अचीव हो जाए तो ठीक है। हाँ तो इट्स फाइन कि कभी कभी ये नहीं हो वो नहीं हो, बट कंटिन्यूअसली प्रेम पटेल में गैप ना आ जाए, कंटिन्यूअसली किसी में गैप ना आ जाए, वो चीज का ध्यान रखना है. डन. और कुछ पूछना है? ठीक है तो आई से यू वर टेलिंग मी सर इतना नहीं हो पाएगा 22 तारीख तक. सर अभी भी लैग कर रही हूँ वो इन्वायरमेंट के लेक्चर्स की वजह से। वो एक्स्ट्रा है कुछ, वो कुछ एक्स्ट्रा आया है. गेटिंग इट? तो एक्स्ट्रा को लेके अगर वो कहेगी हो जाएगा तो नहीं होगा. आई विल नॉट एग्री टू इट. ठीक है तो मेरे हिसाब से थिंग्स आर गोइंग गुड. जस्ट बी इन द पेस. ये याद रखना 20 दिनों में बर्न अप नहीं होना. मेंस का कुछ उठा ले. स्टेट पीसीएस तूने पहले भी किया है, ठीक है. स्टेट पीसीएस और एक कुछ उठा ले उसके साथ. मतलब देख मैं क्या करूँ, 4 आवर से स्पेयर मान के चल अपने. ठीक है 4 को ऐसे डिवाइड कर, या तो 2 घंटे स्टेट तो 2 घंटे मीन्स, 3 घंटे स्टेट तो 1 घंटे मीन्स, इससे ज्यादा नहीं. सर क्या उठाऊं? क्या वीक था, किसके आंसर लिखने में कंफर्टेबल नहीं हुआ थी? पॉलिटी के ज्यादा नहीं थे, पॉलिटी कर सकते तो हैं। GS2 के आंसर लिखो. अब तो मैं सीधे ये बोलूंगा पीवाईक्यूज लिखो. ठीक है इवेल्युएट करवाने हो मैं हेमल मैम को बोल दूंगा, इवेल्युएट हो जाएंगे. नेक्स्ट आज होली के बाद ही विंडो खोलूंगा, लेकिन अभी नहीं. ठीक है होली के बाद 10 दिन की विंडो खोल दूंगा, आंसर से इवेल्युएट करवा दूंगा थोड़े से. ठीक है आई विल ट्राई. अगर इवेल्युएटर्स अगर प्रीलिम्स में फंसे हुए तो नहीं करवा पाऊंगा, पहले ही बता रहा हूँ. कमिट नहीं कर रहा बट आई विल ट्राई, क्योंकि वो भी मतलब स्टूडेंट्स ही हैं मेरे जो इवेल्युएट वगैरह करते हैं ना. इट्स लाइक तो मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि भाई तू प्रीलिम छोड़ के ये कर ले काम. वो वाली चीज है. ठीक है तो यही रहेगा कि, और बाकी थोड़ा सा मेरा भी इंटरव्यू का लोड खत्म है. मैं इवेल्युएट तो नहीं करूंगा बट रिव्यू आई कैन डू, दोज हु विल बी राइटिंग. ठीक है लेकिन पहले ही बता रहा हूँ, अब तुम सारे के सारे आंसर राइटिंग के पीछे भागने में लग गए. इसको इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे इसकी रिपोर्ट ठीक है, इसकी रिपोर्ट यहाँ पे ठीक नहीं है, और गलती से आंसर राइटिंग लिखने लग गए तो मैं क्या ही बोलूं फिर तुम लोगों को. ठीक है तो आई एम नॉट अवॉइडिंग वर्क एंड ऑल,
ऐसा कुछ नहीं है अगर तुम्हें लगे, यू डिजर्व ही नहीं करते तुम लोग। मैंने पहले ही बोला था तुम 100% दो, मैं 200 दूंगा। तुमने अपना 100 दिया नहीं, तो अब मैं क्यों दूं भाई रातों को जाग के? नहीं है मेरे पास समय। दैट इज हाउ इट इज। ये चीज कहीं कोर्स में प्रॉमिस भी नहीं गई थी, तुम मुझे स्यू भी नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, डन। मार्क्स वगैरह भी ठीक चल रहे हैं, डोंट वरी। जितना तू रोती है उतना रोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थिंग्स आर ऑन राइट साइड आई विल से। और एज फार एज आई कैन सी, पीवाईक्यूज भी अच्छा चल रहा है। गुड टू सी सर दैट। ज्योग्राफी में वो फैक्चुअल है, जो मिस्टेक हुई है मान ले उसको, यस सर। वो एडिशन हो गई है, वैल्यू एडिशन। ठीक है, कितनी बार भी ज्योग्राफी पढ़ ले तो भी तेरा इतना नहीं जाएगा स्कोर। ठीक है, लेकिन वो वैल्यू एडिशन गलती होने की वजह से अब स्कोर बढ़ सकता है। ठीक है, थिंग्स आर ऑन द राइट साइड। ठीक है, और कुछ पूछना है? सर रिवीजन वाला क्या मुझे ये भी करना चाहिए अब कि जो ऐसे कहीं ज्योग्राफी में मुझे लग रहा है थोड़ा वीक है तो रोज एक एक घंटा आधा घंटा थोड़ा थोड़ा देखती हूँ अपार्ट फ्रॉम जो डेली पढ़ती हूँ। मैं ऐसे बताऊंगा इसको, अगर तू पूछ रही है कि सपोज तूने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रही है, तो तुझे सिर्फ मॉनसून समझ में नहीं आ रहा, तो मॉनसून यू कैन गो फॉर इट। अब ये नहीं है कि पूरी इंडियन ज्योग्राफी उठा ली, समझ गई ना मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? वो चीज है। सर आप मैपिंग कब करवाएंगे या हम ही लोग कर लेते हैं, आप कोई सोर्स बता दीजिए। यार आज ही मटेरियल मंगाया था, तो एक बार मेरे को गो थ्रू होने दो। आईआर मैपिंग की बात कर दी है ना तू? ज्योग्राफी की जो मैंने आपसे ज्योग्राफी पहले की? पूछा था। यस सर। आईआर की तो अभी पीटी नहीं आई है, वो तो उसी के साथ हो जाएगा। यार इसको होली के बाद बैठते हैं लेके, एक एक कॉन्टिनेंट लेके बैठेंगे, मेजर मेजर पोर्शंस में बताता चलूंगा तुमको सेशन में। या तो सर ठीक कोई है, वीडियो आप बता दीजिए यूट्यूब वगैरह की कोई, या हमें लोग ढूंढ रहे हैं। फिर मुझे थोड़ा सा समय दे, एक प्लेलिस्ट है। मैं मतलब मुझे ना एक काम करियो तू, आज मैसेज डाल के छोड़ दे। और ठीक है, और मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं 22 तारीख से अवेलेबल नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ घूमने, बहुत हो गया है। ठीक है, तो 22 से 27 तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो अगर 22 से पहले रिप्लाई नहीं आया, तो तेरा काम होगा 28 को याद दिलाना। वो मुझे ना वीडियो एक्चुअली 2-3 प्लेलिस्ट हैं, तो मुझे उस हिसाब से देखनी पड़ेंगी। एक सर सत्यम जैन की वो मैंने देखी नहीं, आप बोलिए तो 2x पे देख सकती हूँ मैं कि काम की है कि नहीं, मतलब वो एक बार मुझे यूजुअली ठीक ही। एक बार मुझे भेज दियो। यस सर। एक्चुअली वो बहुत सही लड़का है, बहुत बढ़िया करता है, लेकिन जैसे मतलब एक चीज ना मान लेनी चाहिए कि हर जगह आप अच्छे नहीं हो सकते। यस सर, वो इसलिए मैंने देखी नहीं थी। हाँ, वो मानने को तैयार नहीं है, बस बाकी ही इज गुड। आई एम टेलिंग यू, कुछ चीजें हैं जैसे एथिक्स वगैरह वो करवाता है तो अच्छी करवा लेता है, नो डाउट ओवर इट। ठीक है, मतलब लक्ष्मीकांत पढ़ाता है वो भी ठीक पढ़ाता है, काफी कुछ चीजें उसकी ठीक है, बट अब मेरे को देखना पड़ेगा प्ले लिस्ट वगैरह अब मैं वो मुझे या तो वीडियो भेज दियो, उसके बाद ही मैं कमेंट करूंगा, वरना मैं कोई अपना ट्रेडिशनल सोर्स बता दूं। ठीक है, और बता। बस बाकी लोग सीखो, कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस ऐसे पूछा करो, तुम लोग आ जाते हैं यहाँ पे मुंह उठा के। फेयर एनफ, देन यू कैन लीव एज वेल। नेक्स्ट, करण। सॉरी सर, पहले मैं लेट आया, मुझे तो पता भी नहीं था सेशन था आज। क्या? सेशन था आज, मतलब ये कोई नोटिफिकेशन आ रखी थी पहले, मुझे पता नहीं था, तो मैंने चेक नहीं किया, सॉरी। मैं बताऊं तो अचानक से कैसे आ गया फिर ये? नहीं, मैं तो डिनर करके वापस आया, मैंने टेलीग्राम देखा कि एक बार देख लूं, क्या पता कुछ नया आया हो, तो फिर मैंने देखा कि सेशन चल रहा है। यो ये मैंने आई गेस कब डाल रखा है तुमको? ट्यूसडे को, मतलब मैंने मार्च 17 को बताया था कि 19 को, मतलब शायद संडे को ही बता दिया था मैंने, संडे को 7 बजे मैसेज सर, पड़ा ये हुआ भी है। है कि मतलब मैं इतना ज्यादा चलाता भी नहीं हूँ। कोई बात एनीवे नहीं, कोई बात सॉरी, एनीवे सॉरी। नहीं, अरे नहीं ठीक है, कुछ मिस नहीं किया। स्टार्टिंग की सच में रिकॉर्डिंग 10 मिनट देख लियो, 15 मिनट के करीब, उसमें कुछ डायरेक्शंस है वो जरूर देख लियो। ठीक है,
वो 26 जून से रिलेटेड क्या चेंजेस करने हैं। देख अब मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, तुझे मिला है दोस्त ब्रीथर, जी तो सर जितना लैग कर रहा था ना वो तू कवर कर सकता है, तो चुपचाप खींच दे और तू सही चल रहा है। अपडेट देने के बाद से मुझे लग रहा है तो थोड़ा ठीक चल रहा है कंपैरेटिवली। नहीं मतलब ठीक है सर, पहले भी वैसे ही था, पर खैर अब ये हो गया कि सी सैट करने लग गया हूँ। कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब मेरी साइड से देख, कंपैरेटिवली ठीक जा रहा है लेकिन स्लो है, ठीक है। सेक्शनल अभी भी एनवायरनमेंट का अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है। सर ज्योग्राफी के अटेम्प्ट कर रहा था अभी। हाँ मैं स्लो तो हूँ रीडिंग में बेसिकली, उसी के कारण फिर सारा टाइम हम्म उसमें जाता करने में। फिर सेक्शनल्स के लिए मेरे को रात को 2 घंटे बैठना पड़ता है, फिर उनको एनालाइज करना पड़ता है। तो ज्योग्राफी के मैंने ऐसे 4 दिन कर करके करे हैं। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो वही एक इशू है जो मेजरली मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि स्लो है। और इस टाइम मैं तुझे और कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, ना आंसर राइटिंग, नथिंग। इसको खींच ले अब। हाँ सर वो तो हो जाएगा, बट सी सैट का थोड़ा कमजोर है क्योंकि मेरी 50% ही वो आ रही है एक्यूरेसी। मैडम से बात की एक भी बार? हाँ मैम से की थी बात, मैम बोल रही हैं कि प्रैक्टिस करते रहो हो जाएगा। यार प्रैक्टिस ही एक्चुअली इसका ही है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो मैं ये बोल, मैडम की वीडियो समझ में नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रहा कुछ तो मैं कहूंगा एक बार यूट्यूब कर ले पर्टिकुलर टॉपिक नहीं जिसमें सर तेरे। समझ में तो आ रहा है, बट वही प्रैक्टिस की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि मतलब कोई क्वेश्चन करने बैठता हूँ होता नहीं है, बट जब उसका सोल्यूशन देखता हूँ इसलिए ये तो इजी था, मतलब होने लायक नहीं था। तो इसका तरीका यही होता है। मैं तुझे बताऊं, जैसे मतलब ये जो तेरे साथ हुआ, मतलब मैं जब कैट दे रहा था 2014 में, तो अब प्रैक्टिस की मैंने, ठीक है। क्वेश्चन हो ही नहीं रहा था प्रैक्टिस करने पे, सॉल्यूशन देखे तो होने लगे, ट्रिक समझ में आने लगी, किक समझ में आने लगी क्या है। तो उसके बाद जब अटेम्प्ट किया तो थिंग्स वर फाइन। हाँ सर ये भी है। वैसे तो ऊपर से मेरा इस एप्टीट्यूड भी नहीं है ना क्वांट वाला। वो तो डेवलप हो जाता है भाई। अगर तू नेगेटिवली बोलेगा तो वर्ड्स हैव पावर, ये याद रखियो, खुद नेगेटिव हो अरे जाएगा। सॉरी, नहीं मेरा एप्टीट्यूड है, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ एग्जैक्टली ठीक ठीक है। है। तो उसको थोड़ा देख। अभी मेरे को एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक, अगर कोई दिक्कत हो तो शिविन की मैंने पीडीएफ शेयर कर दी हैं, वो पढ़ने लायक हैं। एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक कैन बी डन। सर उसकी तो पर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी सी हैं, और फिर एनवायरनमेंट में जो शंकर में वही चीजें कवर कर रखी हैं, बट थोड़ी हाँ अपडेटेड सी हैं। हाँ, मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर ये देखो शंकर कर रखी है, उसको समझ में आ रही है तो ठीक है। इसमें जैसे फॉन्ट वगैरह यूज कर लेता है ना वो थोड़े से, वो वाली चीज है बस, और कुछ। ओके सर नोटेड। ठीक है, एनीथिंग एल्स? स्लो तो चल रहा है देख, मैं यही बोलूंगा 25 दिन है, खींच दे भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। सर एक और है, ठीक है, हाँ थोड़ा उससे अलग है, थोड़ा टेक्निकल जाके डाउट है मेरा, मतलब मेरा बोल। बड़े दिन से रिजॉल्व नहीं हो रहा। मैंने सोचा पूछूं बट नहीं। वो ज्योग्राफी का मैं मॉक कर रहा था, उसके अंदर एक था, मतलब इंटरनेट पे लोगों ने समझाने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया। एनसीईआरटी में कहते हैं कि जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा वो सबमर्जिंग कोस्ट है, और ईस्टर्न कोस्ट है वो इमर्जिंग कोस्ट है। बट क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है कि हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वो इमरजेंट कोस्ट है। अब कहते हैं कि इमरजेंट और सबमर्जेंस वाला वो थोड़ा सा सिमिलर है, पर एनसीईआरटी में बस इमर्जिंग सबमर्जिंग की बात है, और ये जीसी लियोंग से उठा के इमरजेंट सबमर्जेंट डाल देता है। तो उसमें कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। पेंजिया पेंथेलासा वाली थ्योरी अगर मैं सही रिकॉल कर पाया तो, क्योंकि मुझे इसमें दिक्कत हुई थी। लेट मी सी अगर कंफ्यूजन दूर होती है। होता क्या है, जब टेथिस माउंटेन वगैरह जब ये थे, टेथिस सी था जो माउंटेन बना आगे जाके हिमालय वगैरह, ये हो क्या रहा है, प्लेट ये है ना, ऐसे गई है, ये समझ लो वेस्टर्न कोस्ट है, तो ये उठ रहा है, ओके ये सबमर्ज हो रहा है, ये इमरजेंट है, ऐसे समझ इसको। तो सर ये बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी सी टर्म्स क्यों यूज करते हैं? एक जगह बोलते हैं सबमर्जिंग है, एक जगह बोलते हैं इमरजेंट है, बस वो आप बोलने का अलग तरीका है क्या? हाँ, ठीक है।
आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। सर और सारे एक क्वेश्चन तो जीसी लियोंग से डाल रखे होते हैं इन्होंने, मोक वालों ने, इतने यार उनका टेक्निकल चीज है। उनका काम है ना, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ। अब तुम जीसी लियोंग पढ़ने जाते हो ना, तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आता, मैं ये भी बता रहा हूँ, हाँ जी सर। कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। और ना यूपीएससी पूछेगा, तुम देख लो पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे कुछ, ठीक है। सर बट अभी इसके चक्कर में कम से कम क्लैरिटी तो आ गई कि कंफ्यूजन हो रहा था, हाँ जी सर। ठीक है। और सिर्फ उसी टॉपिक्स पे जहां पे इनकी जरूरत थी, सब में हाँ जी करने बैठते तो दिमाग खराब हो जाता, ये चीज मैं कह रहा था, ओके। ठीक है। और बता, वो तो ठीक है उसको मैं बता रहा हूँ, उसका तरीका वही है, जब दो चीजें ऐसे टकरा रही हैं तो इस साइड से फोर्स लग रहा तो दूसरी साइड से उठ गया, दैट्स वाई हाँ उधर सर। पहाड़ियां हैं। सर पहाड़ियां बेसिक्स हैं में तो तो सुनो सुनो, अब मैं बताता हूँ, पहाड़ियां हैं तो वाटरफॉल हैं। कि ईस्टर्न साइड में वाटरफॉल नहीं है, वेस्टर्न घाट्स पे है, हम्म रीजन वही है ना, वाटरफॉल ही ऊंचाई से करेगा ना। तुम ज्योग्राफी को एज ए टेक्निकल सब्जेक्ट समझने की कोशिश करो। मैं भी पहले ना 1-2 साल बहुत परेशान हुआ, फिर बाद में समझ में आया कि भाई इसको दिमाग नहीं लगाना होता, इसको बिल्कुल मैथ की तरह देखो, अच्छा ये हो रहा है तो ये हो रहा है तो ये, ओके सर। ठीक है। और बताओ, वो तो ठीक है सर। डन, यस सर। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लियो, यू टू कैन लीव इफ यू वांट। ओके सर। ओके। कोडिंग में Sushri, I haven't got any update from your side. I think I created this blank sheet and it is blank still. You told me that I will not be able to update you. I am doing all this, whatever you say. It's fine. It's like you are into the auto mode from now onwards itself. Okay, Kriti. यस सर। सर मैंने वो समरी एडिट कर दी थी। ठीक है, ठीक है। I can sense it. यार चल तो ठीक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चल तो ठीक रहा है, बट आई टू एम कंसर्न्ड। जो आपने आज बोला कि ड्यूटी लगेगी, ट्रेनिंग होगी अभी, तो उसमें थोड़ा टाइम बर्बाद होगा। पहले ट्रेनिंग लगाएंगे, फिर मतलब 4 तो ट्रेनिंग होगी कम से कम, 3 या 4 दिन, है ना। फिर ड्यूटी होगी, फिर कुछ और कॉन्फ्रेंसेज सर होंगी। एक्चुअली मेरा कॉलेज सेंटर भी है। आई डू अंडरस्टैंड इट। तो अभी मैं यही बोलूंगा, तुम इस यहाँ पे जितना खींच लोगे, वहां पे फिर मैं हम लोग सिर्फ उस पे फोकस करेंगे जो आपने ऑलरेडी कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल जितना टेस्ट वेस्ट लगा रखे हैं ना, तो उनकी रिवीजन पे ज्यादा फोकस रहेगा मेरा आपके साथ। सर हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी एक मेरा मेंटी है, वो उसे लास्ट ईयर डेनिक्स मिला था, डॉक्टर अतुल, ठीक है। उसकी इलेक्शन ड्यूटी भी लगेगी और तुमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काम होगा, वो भी दे रहा है एग्जाम। ओके और वो इस टाइम ट्रेनिंग पे भी नहीं है, जॉब पे है, सर, बढ़िया वो काम मिल रहा है। बोल रहे हैं कि या तो बूथ इंचार्ज की जगह की या प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो बढ़िया काम है, ये जब इंटरव्यू देने जाएगी ना तो बहुत काम आएगा ये। सर मुझे तो डर लग रहा है, क्या हो रहा है ये। डोंट वरी, ठीक चल रही है, बस इसको खींचती रहे। डूइंग गुड, आपके लिए भी टच वुड, दैट्स इट। सर मुझे चॉकलेट चाहिए। डन। 30 डे चैलेंज मेरे को देखना पड़ेगा किस किसने कंप्लीट किया है अभी तक सी सेट वाला। आई एम रेगुलर। ठीक है, वर्क्स। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस कृति? नहीं सर, बस आप एंड में थोड़ा सा डांट देना। बे चल। अरे सर प्लीज, गुड वर्ड्स डोंट वर्क फॉर मी। ठीक है, लास्ट 2 बार से सही चल रहा है तो मेरे को चलने दो ऐसे ही, ठीक है। ओके, दिव्यांशी फाइनली, हाँ। यस सर। देन माधवी आई गेस आपके बाद है।
ठीक है, टफ क्वेश्चंस में स्पीड, दिव्यांशी टफ क्वेश्चंस में स्पीड जनरली नहीं बढ़ती है इतनी आसानी से जब तक आप उसके साथ कंफर्ट ना हो। वो स्लो स्पीड के साथ जब एक बार कंसेप्ट की क्लैरिटी आती है सीसेट में, तभी आप स्पीड बढ़ाने की सोच सकते हो, उससे पहले नहीं। तो सर वो क्लैरिटी कैसे आएगी, क्योंकि मतलब क्या? रियलिटी यही है, प्रैक्टिस। कोई उसमें कुछ तुक भी नहीं है उसमें तो। मैं अगर सीसेट पढ़ा रहा होता तो तुम ऑटो मोड पे होते। पर मतलब सर एक बात बताइए, जैसे वो पहले मैगजीन करने की बात थी, तो उसमें जो डिले हुआ आपने बोला अरुण शर्मा कर ले, अब परसेंटेज के क्वेश्चन करे सर, लेकिन उसके बाद भी नहीं लग रहा कि सारे नए क्वेश्चन हो जाएंगे, तो सर इसका तो लिमिट ही नहीं है ना, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कैसे बढ़ूं आगे, कॉन्फिडेंस तो कैसे? आगे बढ़। आर्ट ऑफ लिविंग भी तो है, क्या पता परसेंटेज वो ये लिया है जहां पे तुझे ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना। और टॉपिक नहीं, अब जैसे एलिगेशन के करे थे, मैंने पिछली बार उसको स्ट्रॉन्ग में डाला था, मैं बड़ी खुश हो गई थी, अच्छे हो गए, लेकिन अभी ये जो मैगजीन थी ना कोई सी, उसमें क्वेश्चन था एलिगेशन का सर, सिर्फ एक क्वेश्चन था, उसको करने में भी मैं अटक गई, मैं फिर कंफ्यूज हो गई उसके कॉन्सेप्ट में। अरे इट्स फाइन, उसको जाके सॉल्यूशन देखो और दोबारा दोबारा करो उसको। ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम एक बार करोगे और सब कुछ सही हो जाए? मतलब ऐसा नहीं होता। इतना होता तो सीसेट में फेल क्यों होते बच्चे? ठीक है। ठीक है, और सर मैंने फाइन। फुल लेंथ अभी कोचिंग वाला नहीं दिया, सिर्फ प्रीलिम्स वाला दिया है, वो मैं भी दूंगी। वो तो मैं समझ गया था। हम्म। ठीक है यार, एक काम कर दिव्यांशी, तू मार्क्स मेंशन किया कर थोड़ा। मैंने करे हैं सर, हर एक के, अच्छा ऊपर नहीं, ऊपर किया, सॉरी सॉरी। और उसके बीच में भी करे हैं, मतलब नहीं, इसमें। पीवाईक्यूज में भी जैसे करेक्ट इनकरेक्ट डाल दिया कर। अच्छा ठीक है, मैं सर अब डेली डाल दूंगी। बाकी ठीक है। ठीक है। एनवायरमेंट डाउन है थोड़ा है। हाँ सर पता है, मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है, जब इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर कर रही हूँ तो सब याद आ रहा है, सब रिलेट हो रहा है, लेकिन ये सेक्शनल में तो पता नहीं, मुझे ऐसा नहीं है कि कुछ नया था सेक्शनल में, मतलब सिर्फ एक आर्ट एंड कल्चर का तो सर मुझे लगा पेपर थोड़ा, ये सेक्शनल वाला कि कुछ नई टर्म्स हैं, लेकिन कुछ काफी हद तक सेम एज इट इज आपके नोट से थे जो आपने हमें डिक्टेट कराए थे, लेकिन बाकी सेक्शनल में मुझे नई चीजें नहीं लगी, पढ़ी हुई लगी, बट द थिंग इज कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। आप सुन रहे हैं सर? हाँ, याद नहीं आ रहा था इसीलिए मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिवीजन किस तरीके से करूं, ऐसा लग रहा है कि वो चीज। गलत जो हो गए हैं, जब दोबारा पढ़ेगी तो अपने आप वहां ध्यान जाएगा। रिवीजन का तरीका ही यही है। ठीक है सर। बाकी स्ट्रेटेजिक रिवीजन के अलावा कुछ फॉलो नहीं करना। स्ट्रैटेजिक रिवीजन एक बार और बता दो। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, फिर मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा, फिर जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहली हम्म। कैटेगरी सिली मिस्टेक्स, ठीक है, ठीक हो जाएंगी। सेकंड हम्म। कैटेगरी न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं, जो मुझे इशू क्रिएट कर रहे हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मतलब नहीं है जिसमें, है लेकिन गलत हो गया या नहीं है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, उन टॉपिक्स को मैं एश्योर करूंगा कि एनालाइज करूंगा उन क्वेश्चंस को द वे आई टोल्ड यू टू डू प्रीलिम्स एनालिसिस। ओके। ठीक है सर। ठीक है, फेयर। ओके, हाँ कृति बोल रहा, जब तक मैं माधवी की शीट खोलता हूँ। सर एक तो ये था कि मेरे नंबर एक रेंज में फिक्स हो गए हैं। तो चुप रहे, मत रो उन नंबरों पे, ठीक है वो। अच्छा सर, आपने ये कब बताया कि प्रेजेंट्स का कैसे एनालिसिस करना है पेपर का? है पूरा सर वो सेशन लिया था मैंने। डॉट वाला शायद सर ये पूछ कब लिया, बताया आपने? मुझे भी नहीं याद आया, मैं बोली नहीं, मुझे लगा डांट अरे पड़ेगी। जिसमें पीवाईक्यू एनालिसिस वाला तरीका बताया, अरे पीवाईक्यू एनालिसिस कह रहा हूँ जिसमें मैं वीडियो दे दूंगा, मैंने एडसारथी का मटेरियल यूज किया था उसमें थोड़ा सा। वो तो याद आ गया सर, पर वो जो डॉट वर्ड ये आपने ये यूज करा था ना, ये बिल्कुल याद नहीं आया, ये आपने कब बोला? मैं इसलिए चुप रही, मुझे लगा पता नहीं, हो सकता है मेरे माइंड से। थैंक यू तुम लोग कृति। बेवकूफ हो।
अरे सर मुझे एक नहीं बार मुझे किया। ना एक सुनो मुझे एक बार आज का दिन दे दो, होगा तो मैं कल परसों में मतलब दोबारा सेशन ले लूंगा या एक दोबारा ले लूंगा, उसमें बता दूंगा। ठीक है, मेरे को एक्चुअली कुछ चीजें मैंने डिजिटली लिख रखी है, कुछ चीजें टेलीग्राम पे लिख रखी है कि तुम्हारे सेशन में क्या डिलीवर करना है, क्या डिलीवर हो चुका है। तो उन दोनों को मुझे कोरिलेट करना पड़ेगा, जो जो मिस आउट है मैं नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अभी डाल दूंगा फिर कुछ ग्रुप पे। ठीक है, सर आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया के कुछ चैप्टर्स करने पड़ रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी में वो चीजें नहीं है। वो तो चीजें ठीक है, पीवाईक्यूज में कवर हो जाती हैं, ओके। तो मेरा डोंट पीवाईक्यू वरी। वाला सिस्टम थोड़ा बिगड़ रखा है। मैंने आर्ट एंड कल्चर के हमेशा बोला कि पीवाईक्यूज कर लोगे 1980 ऑनवर्ड्स सब फाइन हो जाएगा। ओके। ठीक है, और बताओ। डन। ठीक है, माधवी। यस। साइंस एंड टेक की पीटी और हो जानी चाहिए थी आई गेस अभी तक तो। नहीं सर, चालू करने का है। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का बच्चा है, और साइंस टेक का पीटी बच्चे है। हम्म, तो कोशिश करो इसे होली से पहले निपटाओ। हो जाएगा सर। ठीक है, और क्योंकि एक होली। हाँ एक क्वेश्चन ऐसा था कि आरसी 2015 तक सॉल्व किए हुए हैं, उसके आगे भी करने हैं। हाँ, 2 ही साल तो बच्चे 2013 तक तो है, उसके बाद तो आरसी आते ही नहीं थे। ओके, 14 और 13 का। हम्म, ओके। डन। यस ठीक है, हाँ सर। गिरजा एक बोल यार। हाँ बोलो हाँ, बोलो। एक इशू आ रहा था जब मैं एफएलटी सॉल्व कर रही थी, तो उसमें कैसे होता था कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में जैसे लगाने रहते हैं सीक्वेंस वाइज, मतलब तो उसमें प्रॉब्लम जा रहा है कि ईयर्स लर्न करने पड़ेंगे रिलेटेड टू हिस्ट्री। ये मैंने एक बार शायद आपको एक सेशन में ये तो पक्का बताया था, ऐसी बात नहीं, मुझे याद है कि ये मेंस की रिलेटिविटी से स्टेब्लिश करना पड़ता है। आप अगर ऐसे लेके चलोगे ईयर्स रट्टा है, नहीं, वो इवेंट कब हुआ, कौन था, कैसे था वो, इसीलिए तो एनसीईआरटी पढ़ाई है, क्योंकि वो कहानी वाइज होती है सब चीजें। तो रट्टा पीसीएस के लिए लगाना पड़ता है, अगर आप पीसीएस दे रहे हो अपने स्टेट का तो सर्टेनली लगाना पड़ेगा। इट इज देयर। और बताओ। डन। बस। यस। ठीक है, गिरजा। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि लाइक एज पर माई रिपोर्ट कार्ड मैं किस ग्रुप में फॉल करता हूँ, लाइक मतलब ये जो 20 दिन मिला है, 15 दिन whatever जो मिला है, मैं मतलब ऑप्शनल को 1 घंटा दे सकता हूँ या तुझे खींचने लग वाले रहा है, तुझे लग रहा है। इस रेस में मतलब क्या क्या सजेस्ट करोगे? पहले मुझे बताओ, तुझे लग रहा है कि तू दे सकता है? थोड़ा थोड़ा मतलब आई एम कंफ्यूज। गलत लग रहा ठीक है सर। है। प्रॉब्लम क्या है, तू एवरेज से जस्ट ऊपर चल रहा है। ठीक है, मैं बताऊं, 2 दिन भी तेरे डाउन आएंगे, तू बर्बाद हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, बर्बाद होने का इन द सेंस। ठीक है, तो इट्स बेटर कि उसे खींच ले, ताकि लास्ट में रश ना करना पड़े। ठीक है सर। अभी नहीं। ठीक है, ठीक है सर। डन। कृति। सर साइंस एंड टेक का सेक्शनल कौन सा है? फोरम में तो है नहीं कोई। फोरम में साइंस एंड टेक का सेक्शन ही नहीं है। एक है नहीं एक है सर, एक एक है है। तो भेजा नहीं। फोन लगा के गाली दे देना 2 4 बस। ठीक है, और नहीं हो तो किसी का भी लगा लो यार, ऑनलाइन मिल जाता होगा कुछ ना कुछ। ओके, आई सर्च। ठीक। हाँ साइकिल। So my doubt is regarding art and culture. I mean, like mainly medieval wala.
So what's happening is like the one regarding art and culture, Hindu ones, I'm able to like relate, but the Islamic one hota hai na, I mean like they are dash ul like those terms are, I mean like I'm very much confused about them. I mean like I do get so is there any way to relate them or remember them? यार निमोनिक्स वगैरह तो नहीं बना रखे ना, मैं सजेस्ट करूंगा उसको, मैं वही बोलूंगा रिलाई ऑन पीवाई के और रट्टा लगाओ, दैट्स इट। Okay. Yes, sir. ठीक है, फेयर एनफ। यस दिव्यांशी। सर जब कल मैम को अपना इशू बताया था ना, ये सी सेट वाला, तो उन्होंने बोला था कि ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तो मतलब मैम विल सजेस्ट कि जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही कि इन पर अभी अब दिमाग मारना है या नहीं, कि मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस जो थोड़े वैसे टॉपिक्स हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला था, मतलब मैंने उनसे पूछा था कि टिल द टाइम वो ये देखकर बताती है तो क्या मैं मृणाल सर की जो बुक है दिशा पब्लिकेशन वाली, उसमें 95 से जो क्वेश्चंस है वो कर लूं। तो मुझे आपसे पूछना देख है, टफ जो 95 के क्वेश्चन से अच्छा तो मैम की वर्कशीट्स है। वो तो कर चुके हैं ना सर हम लोग पहले ही सब। हाँ तो वो अच्छी बात है, रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है। ठीक है, नहीं मैम की वर्कशीट उससे बेटर है। रीजन क्या, उस टाइम पे बहुत इजी क्वेश्चन आते थे, हिंदी मीडियम वाले तैयारी करते थे जब 3-4 अटेम्प्ट होते थे, उनकी इतनी मैथ नहीं होती थी उनसे। करेक्ट। रट्टा का एग्जाम था ना आज से कुछ सालों पहले यूपीएससी, तभी तो बढ़िया ऑफिसर्स बैठे हुए हैं कुछ लोग। दिस इज हाउ इट इज। ठीक है सर। ठीक है, डन। ओके, तो अब एक जो तुम 4-5 लोग ऑनलाइन बैठे हो, तो तुम लोगों के लिए काम है, होपफुली आज कल में मैं एक लिस्ट डालूंगा। ठीक है, तो मुझे बस ये बता देना इसमें से कौन कौन से टॉपिक नहीं हुए हैं तुम्हारे। ठीक है, किस किस के बारे में मैंने बात नहीं की है। ठीक है, चलो देन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप कुछ क्लैरिटी होगी आप लोगों के पास। मैं 22 से 27 तक अवेलेबल नहीं हूँ, पहले बता रहा हूँ, कोई कॉल नहीं लेने वाला, कुछ नहीं, वहां पे नेटवर्क भी नहीं आते जहां जा रहा हूँ बेसिकली। हाँ कृति कुछ बोलना है? सर डांट। माफी, सर प्लीज। अब मीटिंग सर एंड मैं करने जा रहा हूँ। रिलैक्स हो जाऊंगी। हैं? मैं मतलब रिलैक्स हो जाऊंगी, फिर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी ढंग से। मत कर, अरे मत कर। ठीक है सर सब। एक डाउट है, अभी हाँ जो मैं इवन सेमेस्टर पढ़ा रही हूँ तो मेरा पेपर 2 का सारा कवर हो रहा है उसमें, ऑप्शनल का। तो मैं पेपर 1 पे जाऊं अभी या फिर पेपर 2 के पीवाईक्यूज ही देख लूं? पेपर 2 देख तो ज्यादा बेटर है। ओके ठीक है, ठीक है। चलो देन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू, है ना, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली इन एडवांस, एंजॉय करो। गुड चलो नाइट सर। गुड नाइट।